Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Servotech Power Systems Limited Q4 and FY24 earnings conference call hosted by Vinstra Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touch-tone telephone. Please note that this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, Finance Controller. I would now like to hand over the call to the Managing Director of the company, Mr. Raman Bhatia, for his opening remarks. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Thank you for joining us today for this conference call. We welcome you all to our Q4 and annual earnings call 2024. Servotech Power Systems, established in 2004, is a leading manufacturer of power electronics products. We specialize in innovative and high-quality solar products and EV chargers, actively contributing to the transformation of the sustainability and renewable energy landscape. We are pleased to announce significant order wins from major oil marketing companies like BPCL, HPCL, and IOCL, totaling over more than 5,000 DC chargers and more than 2,600 AC chargers. These orders underscore the growing demand for our EV charging solutions and our strong market position. We are committed to building our global brand through strategic collaboration with prominent players in the EV space. Our extensive network of over 5,600 deployed charging stations nationwide reflects our influence in the market, which has been deployed by oil marketing companies and so many OEMs which we have sold in white label. Additionally, our newly established subsidiary dedicated to manufacturing key EV charging components at our state-of-the-art facility in Haryana aligns with India's vision of Atmanirbhar Bharat for energy solution, green energy solution. The rapid growth of electric vehicles and the increasing demand for sustainable power solutions present immense opportunities for Servotech. We are strategically positioned to capitalize on this transformative shift and anticipate accelerated growth in the coming quarters. Our financial performance in FY24 reflects our strong market position. Revenue increased by 27.5% to 355.26 crores, driven by robust demand for EV charging units and efficient order execution. EBITDA grew by 18% to 22.36 crores, maintaining stable margin. Profit after tax stood at 11.8 crores. Servotech's future is exceptionally promising. The convergence of technological advancement, our commitment to innovation, strategic partnerships, and dedication to sustainability position us for significant growth. We are confident in our ability to expand operations and deliver value to our stakeholders. We express our gratitude to our board, management, employees, partners, and shareholders for their continued support. Together, we remain focused on delivering consistent performance and sustainable growth for Servotech. Thank you for your time. We welcome any question you may have. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and 1 on your telephone keypad and wait for your turn to ask the question. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and 1 again. Ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. We will wait for a moment while the question queue assembles. First question comes from Bala Murali Krishna J from Oman Investment Advisors. Please go ahead. Hi, good morning. I want to know what is the current capacity. I think it's available in the investor position, but last year how many
ACRDC charges we have delivered, and this year, how many charges we are planning from the new facility, and entire consolidation with how many we are planning to deliver? We are having the orders in hand is around 5,000 chargers, and EV chargers is around 3,000 chargers. And we are planning to supply around 12,000 chargers in this year. And our production capacity support this. Okay. And any specific reason for this drop in the margins in the last quarter? I didn't understand. Can you tell me again? Last quarter margins are dropped. Last 3-4 quarters from Q1 onwards, so the margins are slightly dropped. Earlier in Q1 we have 8% around EBITDA margin, and now we have around 4%. Because your question is very valid in terms of numbers, but we are trying to grow very fast, so we have to do so many things simultaneously. Like we are setting up new plants, we are setting up new teams, so many expenses which we have to bear during these quarters, but they did not start giving us a revenue. You understand? Because we are not planning to reach at the next level of 350 or 60 crore. Now we are planning for how to reach 500 crore or then 1,000 crore and then 1,500 crore. According to that, we have to plan our machinery, our plant, our manpower, our team. So we have to bear the cost of that ना. तो वो accumulate हुआ है, वो इसमें दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा profit dip होता नजर आ रहा है, but technically it is not a dip, it is a extension mode. Agreed, sir. And it is margins. So now okay, we are at initial stage and we are at say 1%, 8% margin. But over long run, maybe 5-6 years down the line, how would you see these margins panning out? What could be the sustainable? अगर हम if we stop our revenue at this stage, that means we don't grow the revenue, right? And then we can increase the margin. But if we want to grow the revenue in a same pace and simultaneously we want to grow our capacity and everything, then margin will not increase very much. But yes, in an absolute terms, it will increase very, very big. Okay, understood. That's all, sir. Thank you. Thank you. Next question comes from Agastya Dey from CAO Capital. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, good morning. Thank you very much, Bhatia ji, for giving me the opportunity. Bhatia ji, last quarter you had already said that there would be some slowdown in Q4 because of various government regulations, and also you were in the process of setting up the new facilities and you were making plans for future growth. So जो फ्यूचर ग्रोथ वाला प्लान और आपके हाथ में जो चीजें थी वो तो आपने डिसाइड कर दिया कि कैपेसिटी और एडिशन और टीम एडिशन हो गया है, बट जो गवर्नमेंट रेगुलेशन साइड में था कि उसकी वजह से थोड़ा सा डिलीवरी में स्लो डाउन हुआ था, वो आपने कहा था कि क्लैरिटी आएगी अप्रैल मई में, तो आपको उसकी क्या क्लैरिटी आई है और Q1 कैसा दिख रहा है उस एंगल से? वो क्लैरिटी आ चुकी है. उस क्लैरिटी में जो पहली डेडलाइन है वो है 2 जून 2024, राइट? यानी कि 2024 से पहले कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो फुली इंटीग्राइज करना है, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं. इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो Q1 के अंदर भी हम बहुत बड़ी लीप नहीं लेंगे, लेकिन यस वो लीप इतनी अच्छी जरूर होगी कि शेयर होल्डर को बहुत अच्छा लगेगा, राइट? दैट मीन्स शेयर होल्डर विल फील हैप्पी, बट प्रोबेबली एज अ मैनेजमेंट और एज अ डिसीजन ओनर और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आई विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी स्पीड अप नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिविजुअलाइज करनी पड़ रही हैं, राइट? क्योंकि जो प्रोडक्शन प्लानिंग है, जो नया प्लांट है, वो सब भी 30 जून तक कंप्लीट हो पाएगा, करेक्ट? बट स्टिल वी आर हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट बिफोर 30th of June we are able to supply more than 25% of the total order value. जो हमने ऑर्डर लिए हैं उसका 25% से ज्यादा हम डिलीवर कर पाएंगे
before within a Q1. अच्छा अच्छा सर, थोड़ा सा इसमें आप डिटेल में जा सकते हैं? जी सर, सर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि कंपोनेंट्स इंडिजिनाइज करने हैं, और आपने एक डेडलाइन बताई 2 जून की, तो एक तो इसमें बची हुई डेडलाइंस क्या हैं, और कैसे टाइप के कंपोनेंट्स हैं जो हमको इंडिजिनाइज करने पड़ रहे हैं? अगर हम बात करें तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को बनाने में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं उसमें 2 मेजर पार्ट हैं, ठीक है। जैसे हम अपने बॉडी में भी देखते हैं तो एक ब्रेन है और एक हार्ट है, राइट जी। जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा बहुत सारी एरिया है, लंग है, टेक्निकल डिटेल में जा सकते हैं, आई मीन इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ जी। इसी तरीके से मैं इसलिए लेमन भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में बात अगर मुझसे कर रहे हैं तो मुझे तो मानना है कि 500,000 लोग और भी सुन रहे हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मैं और भी लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो हो सकता है मेरी बात थोड़ी आपको लंबी लगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात को। जी सर। इसी तरीके से जो हम चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर में एक हार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पावर मॉड्यूल, जो पावर पंप करता है किसी भी गाड़ी में, और दूसरा होता है ब्रेन जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक सेट होता है जिससे डिस्प्ले है, एक इंटरनल सर्किट है, बहुत सारे, एक कंप्यूटर होता है कंप्यूटर अंदर जो मोबाइल ऐप से भी बात करता है, सर्वर से भी बात करता है, गाड़ी से भी बात करता है, राइट, सारा कम्युनिकेशन करता है, सब कमांड देता है अलग अलग। तो ये जो कंप्लीट सेट ऑफ ब्रेन है इसको कंट्रोल सेट कहा जाता है, करेक्ट। और दूसरा जो है वो हार्ट है जो पंप करता है। इसके अलावा बाकी की सारी चीजें हैं, और गन है, हाउसिंग है, ये सब तो हो गया। ये 2 पार्ट जो रह गए हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट की डेडलाइन है। पहले जो डेडलाइन है वो है जून 2024, यानी कि जून 2024 के बाद आप इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। पावर मॉड्यूल को सर या कंट्रोल यूनिट को? अच्छा, कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट में जितने भी सेट हैं वो आपको इंडिया में बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग वहां पहुंच चुके हैं कि हम जून में ये सब कुछ इंडियनाइज होगा 100%। अच्छा, ठीक है एंड ठीक है। जब बात रह जाता है दूसरा, वो है पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल की डेडलाइन है 2 दिसंबर 2024। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर से पहले वो भी इंडियनाइज हो जाएगा इंडिया में। उसको भी एसटीडी में हमने इंडियनाइज कर दिया है, बट 100% उसको एसटीडी करके हम इंडिया में कर लेंगे। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट, ये बहुत क्लैरिटी देता है सर। सर इसके बाद आप कुछ और ऐसे गवर्नमेंट रेगुलेशन आ सकते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो, या ये हो गया सर अभी आपके हिसाब से? नहीं सर, देखो मार्केट बहुत डायनेमिक है, क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है। हजारों करोड़ की बात भी नहीं कर रहा, तो हो सकता है लाख करोड़ तक जाती हो ये क्वांटिटी अगर हम कैलकुलेट करें। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ फ्री हो गया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, टेक्निकली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अ गवर्नमेंट और फॉर एवरी कंपनी एंड इवन फॉर एवरीवन, राइट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब इतना बड़ा होता है तो कहीं पर भी कुछ भी गाइडलाइंस आ सकती हैं, कुछ भी नई रेगुलेशन आ सकती हैं, क्योंकि वो टाइम बताता है कि और क्या क्या होना है। सिर्फ आपको विजिलेंट रहना है और तैयार रहना है कि जो भी ऐसा आता है आप उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं और कितनी तेजी से आप अपने आप को उसके तरीके से बदलाव कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब कुछ हो गया, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बट हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, विजिलेंट है। ठीक है सर, ग्रेट सर। सर मेरे कुछ और क्वेश्चन हैं लेकिन मैं क्यू में वापस जाता हूँ, और दूसरे जब पूछ लेंगे तब आई विल कम बैक सर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Next question comes from Aditya Bagaria from Sri Shankar Timber. Please go ahead. Hi, good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, so how much आपकी आवाज नहीं आ रही है expect in the coming year compared to the previous years? I'm sorry to interrupt you, sir. Could you please speak a bit louder? Okay. Hi, sir. How much growth can we expect this year compared to the previous year? नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, सॉरी। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, बताएं। Sir, I was asking कि how much growth can we expect this year compared to the previous years, and आपकी जो planning लग रही है सर, बहुत बड़ी planning लग रही है क्या? Like, are we planning to
go into selling the component part also later on? सर हमारी प्लानिंग हमारे हिसाब से वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से शायद हम बहुत बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जहां हम आज खड़े हैं वहां से हम वी आर प्लानिंग मोर देन 10 times इन नेक्स्ट 3-4 years, दैट इज आवर प्लानिंग, राइट। उसके हिसाब से 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम चल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हम उसको जरूर अचीव कर लेंगे। हमारे पास अगर हम बात करें तो आज से 2 साल पहले वी वर हैविंग अ फैक्ट्री एरिया अराउंड 50,000 square feet, and this year and maximum till next year we would reach up to 200,000 square meter area। तो बहुत सारी जगह हमने ली हैं और काफी सारी जगह हमारे पास है जिसके ऊपर नई फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास जगह हो जाएगी वहाँ तक फॉर प्रोडक्शन। एंड कुछ बड़े एग्रीमेंट्स भी होने जा रहे हैं पर्सनल और टेक्निकलिटीज में विच विल सपोर्ट अस। Okay, so I got your answer. Thank you so much for your time. थैंक यू। Thank you. Next question comes from Amit Kumar, an individual investor. Please go ahead. हाय सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। तो हमने डीजल एसी चार्जर्स Q4 में कितने बनाए और FY24 में FY23 में सर? FY24 की जब हम बात करते हैं तो वो भी स्टार्ट हुआ है, 1 ही महीना हुआ है। मैंने आपको बोला कि दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में टारगेट कर रहे हैं कि लगभग हम 1500 से 2000 चार्जर सप्लाई कर सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम कर लेंगे, राइट। इसमें कुछ पार्ट हमने मार्च में भी एग्जीक्यूट किया है, बहुत थोड़ा सा। इसको मिला के हम लगभग 20 से 25% टारगेट कर रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और अगर आप बात करें तो हमारा जो टोटल चार्जेस हैं जो हम अब तक डिलीवर कर चुके हैं, दैट इज मोर देन 5600 चार्जेस टिल 31 मार्च 2024। थैंक यू सर। बस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर FY24 में कितने बनाए हमने, कितने डिलीवर किए हमने? तो 24 में तो अभी 1 ही महीना हुआ है ना सर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 सर, वो पूछा था। 23-24 का? हाँ जी सर, हाँ जी। 23-24 और सर उसका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डाटा मेरे हाथ में हैंडी नहीं है, बट अगर हम बात करें तो जैसे 2 साल का डाटा मेरे पास है, वो टोटल है 5600 अप्रॉक्स। ओके ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें जीपी मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो गए, तो ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जिसके प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं इस क्वार्टर में? प्राइसेस इंक्रीज हुए? सर ग्रॉस मार्जिन हमारे 400 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो गए इस क्वार्टर में, तो कौन से मतलब किस वजह से हुआ, कौन से रॉ मटेरियल या किस पैकेजिंग, क्या कॉस्ट बढ़ गया हमारा? की प्राइस नहीं बढ़ी, कोई रॉ मटेरियल की प्राइस नहीं बढ़ी। प्राइस होने की जो ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है उसके पीछे इंटेंशन है, और वो इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि मार्केट में इस तरीके के प्राइस बेंचमार्क सेट करने हैं कि ओवर चार्ज प्राइस करके अपना प्रॉफिट बढ़ाने का कोई इच्छा नहीं है। हम बेस्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट को चाइना से FOB प्राइस पे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन MNC को सप्लाई करना चाहते हैं, सबसे सस्ता प्रोडक्ट देना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है। उसका हिट आपको थोड़ा दिख रहा होगा। हम चाहते तो शेयर लाइन ले सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक मूव है सर। एज द प्रीवियस क्वेश्चन आप कह रहे थे कि 10 टाइम्स ग्रोथ हो जाएगी नेट प्रॉफिट में, दैट मीन्स मतलब अभी हम लगभग 353 करोड़ हैं, तो लगभग 3500 करोड़ के आसपास हमारी टॉप लाइन होगी अगले 4-5 सालों में। हम ऐसा सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मतलब लगभग? बिल्कुल, हम भी ऐसे मानते हैं और हम भी ऐसे ही सोचते हैं और हम काम भी इसी के लिए कर रहे हैं। ओके सर, अभी ऑर्डर बुक प्राइस क्या होगा हमारा अभी टोटल? अभी जो ऑर्डर बुक साइज है वो आज की डेट में लगभग 450 से 500 करोड़ का है। और ऑर्डर पाइपलाइन कितना है अभी? 619 करोड़ के आसपास है, लगभग 619 करोड़ का, 619 करोड़ के आसपास का है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट फ्यूचर।
थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. I repeat, ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. We have a follow-up question from Agastya Dev from CAO Capital. Please go ahead. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। भाटी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था सर, आपने अभी बात भी बोली उसके बारे में, आपने टच किया उस बात को कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का आपका प्रोसेस चल रहा है। तो अभी आपका कितना परसेंट, अगर मैं बिल ऑफ मटेरियल देखूं आपका AC एंड DC चार्जेस के लिए, तो कितना आपके हिसाब से आप कितना ऑलरेडी कर चुके हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और कितना लॉजिकली पॉसिबल है? कंपनी की कैपेबिलिटी कैसी है कि आप कितना बैकवर्ड कर सकते हैं? कुछ केसेस में ऐसा होता है ना सर कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर टू बाय फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट में दूसरे लोग भी कैपेसिटी डाल के बैठे हैं, वो सस्ता पड़ जाता है। तो अभी कितना है सर, और कितना आप पहुंच सकते हैं? आपका सवाल अच्छा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी ना दो अलग अलग तरीके हैं सर। एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि आप सब कुछ अपने घर में या अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाना चाहते हैं, दैट इज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? जी। और दूसरा तरीका होता है कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। जी। तो हमारा टारगेट मेक इन इंडिया करने का है, इन हाउस करने का नहीं है 100%। अच्छा। क्योंकि अगर आप सब कुछ अंदर करेंगे तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसमें हम लॉस भी कर सकते हैं, और हर चीज की आपके पास कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के साथ, सो दैट वो चीजें इंटरनेट हो जाए और हम ये कह पाएं कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, हिंदुस्तान में बनता है, जैसा चाइना भी करता है। तो चाइना में हर मैन्युफैक्चरर सब कुछ नहीं बनाता, लेकिन वो सब कुछ चाइना में बनाता है। ऐसे ही हम सब कुछ इंडिया में बनाना चाहते हैं और इंडिया का ही प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि कितना परसेंट मेक इन इंडिया हो चुके हैं, तो हम मेक इन इंडिया लगभग 62-63% हो चुके हैं, और हम मोर देन 90% मेक इन इंडिया हो जाएंगे दिसंबर से पहले। अच्छा। सर, इसकी वजह से मार्जिन्स में कितना, अच्छा मार्जिन का तो आप कवर कर चुके हैं, आपके क्राइटेरिया दूसरे हैं। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा था मार्जिन मेरा बड़ा क्लियर है। मेरी मैनेजमेंट की जो थॉट प्रोसेस है बहुत क्लियर है। अगर आप जर्नी को देखें तो हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे, शायद ये पता नहीं रेलिवेंट है या नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो शायद कॉल को सुन रहे होंगे, वो नहीं जानते सर्वोटेक को, वो नहीं जानते हैं रमन भाटिया को बहुत ज्यादा, या मैनेजमेंट को, राइट? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सर्वोटेक 2004 में शुरू हुई थी और सर्वोटेक IPO लाई थी 2017 में, करेक्ट जी? लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि सर्वोटेक ने पहला ईसो अपनी कंपनी का 2006 में दिया था। अच्छा। मैनेजमेंट के मन में ये पहले से ही था कि हमें एक साथ अमीर बनना है, अकेले अमीर नहीं बनना, यानी कि कंपनी को बड़ा करना है और साथ जुड़े हुए हर एक को आगे लेके जाना है, इस इकोसिस्टम को डिजाइन करना है। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम का मतलब जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि हम जो भी काम करेंगे उस काम को करने में पहली बात आती है कि हम अपने कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट देंगे उसको ये कभी भी वैल्यू टू मनी नहीं देंगे, हम वैल्यू फॉर मनी नहीं देंगे, हम उसको मोर देन वैल्यू फॉर मनी देंगे, यानी कि उसको कंफर्ट, उसको अच्छा प्रोडक्ट और एक फील आए कि मैंने एक बेस्ट प्रोडक्ट चुना है। दैट इज नंबर 1। किस प्राइस पे? उस प्राइस पे जिस प्राइस पे इंडिया में कोई दे नहीं सकता, यानी कि बेंचमार्किंग ये होनी चाहिए कि आज दुनिया कहती है कि चाइना से सस्ता कोई नहीं दे सकता, हम ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में हिंदुस्तान से सस्ता कोई नहीं दे सकता, पर हम ये साबित करके दिखाएंगे। तो जब ये करने की बात करेंगे तो इसका मतलब हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी अनजस्टिफाइड नहीं रखना चाहते, ये है पहली चीज। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इस कंडीशन में पहली चीज हमने जो दी वो दी उसको जिसकी वजह से कंपनी चल रही है, वो है कस्टमर। तो कस्टमर को बेनिफिट दी। अब इसके बाद जो मार्जिन के रूप में पैसा आएगा जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, उस मार्जिन में से पहला अमाउंट इसी कंपनी पे खर्च होगा, इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करने के लिए, ताकि ये इंफ्रा बढ़िया हो हमारे, ताकि हम और बढ़िया प्रोडक्ट बनाएं। फिर जो पैसा बचेगा उससे अपने एम्प्लॉइज को बेहतर बनाएंगे। इसके बाद हमारे सप्लायर को बेस्ट करेंगे ताकि सप्लायर हमारे को सपोर्ट कर पाए। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। दैट इज द थॉट प्रोसेस। और शेयर होल्डर्स को भी जो हम देना चाहते हैं
वो देना चाहते हैं कि इस मार्केट में जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कंपनी के, हम उसके सबसे हाईएस्ट लेवल पर अचीव कर पाए। दैट इज द थॉट प्रोसेस। अब इसको कैसे कैसे कितना इसको परफॉर्म करेंगे, कितना एक्सीलेंस ला पाएंगे, कितना प्रिसाइज कर पाएंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तो हर एक एरिया पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में। करेक्ट। तो चाहे आप पिछले 5 साल का डेटा देख लीजिए, आप 7 साल का डेटा देख लीजिए, हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकता कि आप नीचे जा रहे हैं। तो हम काम उसके लगातार कर रहे हैं। चाहे हमने जीपी को घटा दिया, चाहे हमने नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा घटा दिया, लेकिन आप देखेंगे काम हर जगह हो रहा है। टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, प्लांट पे काम हो रहा है, एम्प्लॉइज पे काम हो रहा है। आज आप एम्बिशन बॉक्स पे जाके देखिए, लिंक्डइन पे जाके देखिए, मतलब आज हम हर जगह पे काम कर रहे हैं। आज एम्प्लॉइज हमारे साथ काम करके खुश है, आज सप्लायर हमारे साथ काम करके खुश है, आज इन्वेस्टर हमारे साथ खुश है, आज हमारा कस्टमर हमारे साथ खुश है। तो यही तो चीज करना है, यही तो इकोसिस्टम होगा। सर ये इस चीज में एक चीज में थोड़ा सा ये मैंने पिछले क्वार्टर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहीं सर आपको जो सोलर वाला पार्ट है आप हमेशा मेंटेन करते हैं कि 60-40 50-50 चलता रहेगा लॉन्ग टर्म में। सोलर में हम देख रहे हैं कि ऐसा प्रोबेबली आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि आज की डेट में सोलर में इंडस्ट्री ग्रोथ ज्यादा है क्योंकि ईवी थोड़ा सा कम चल रहा है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन एंड टीजिंग ट्रबल्स एंड ये सब, बट इट विल पिक अप। बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में सोलर ज्यादा है, बट हमारा जो सोलर है वो कहीं थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। सोलर में सर थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि ये क्वार्टर में क्या हुआ, आपकी ऑर्डर बुक वहां पर कैसी है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपको कैसी ग्रोथ दिख रही है वहाँ पर। सर आपको भी पता है कि सोलर मार्केट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है और सोलर के अंदर बहुत तेजी है, राइट। जब भी किसी भी इंडस्ट्री में बहुत तेजी आती है तो वहां पर प्रोडक्ट हमेशा कॉमोडिटी मार्केट बन जाता है। आप कुछ भी देख लीजिए, जब वो कॉमोडिटी मार्केट बन जाता है तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जब नहीं रहती तो आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। और जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो यहाँ तो आप कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या आप प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। जिसका जो हमारी फिलोसफी से बाहर है। दैट्स वाई हम उसके ऊपर बहुत सीरियसली कुछ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंपोनेंट और ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसका जो आपको बहुत जल्दी दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ दिस फर्स्ट क्वार्टर और इन सेकंड क्वार्टर स्टार्ट यू विल सी कि काफी कुछ बदलाव दिखेगा आपको। तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो इस मार्केट में भी बहुत बड़ा कुछ टर्न अराउंड होगा जो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो सर आप अभी भी मेंटेन करते हैं कि लॉन्ग टर्म आप दोनों बिजनेस रफली सेम लेवल पे रखेंगे, 50-50 या 60-40 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक और चीज है सर, ये एक बड़ी ना जो स्थिति है वो बड़ी अजीब है। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आज एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी की 1000 करोड़ टर्नओवर है और मैं कहता हूँ 60-40 की रेशियो मेंटेन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 600-400, ठीक है। अब अगले साल कंपनी की टर्नओवर है 2000 करोड़, करेक्ट। अब वो 2000 करोड़ में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ईवी से आ गई मान लीजिए, राइट, ज्यादा। वो मैं समझा सर, वो वाला बात में नहीं, दोनों अपने साइड पे भी ग्रो कर जाएंगे तो भी आप 60-40 मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो बदल भी सकती है। जी नहीं सर, मैं उस हिसाब से हाँ, तो वो मैं उससे कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट यस हम सीरियस हैं, हम उससे शिद्दत से काम कर रहे हैं। सर मैं नंबर की बात नहीं कर रहा था, 60-40 मेरा मतलब ये था कि आपका ध्यान और आपके एफर्ट, लाइक मैनेजमेंट का टाइम एंड एफर्ट, आप दोनों बिजनेस पे कंटिन्यूसली अभी भी ये मेंटेन करें कि दोनों पे लगभग अगर अपॉर्चुनिटी रहेगी तो दोनों साथ में ग्रो करेंगे। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा आप नहीं नहीं, फिर आपको ये समझना पड़ेगा दोनों पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं दोनों को अगर ध्यान दूंगा तो थक जाऊंगा। उस ध्यान देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे की मैनेजरियल पोजीशन हैं, हर वर्टिकल का एक हेड है, उसके अपने टारगेट हैं, उसकी अपनी चीजें हैं जिसको उसने आगे लेके बढ़ना है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा तो उसको जो सपोर्ट चाहिए वो मैनेजमेंट देती है, और अगर वो जस्टिफाई नहीं करता तो वो बदल दिया जाएगा। बट अगर आप कहेंगे कि माइंडसेट या थॉट वो बिल्कुल क्लियर है कि वो वाकई उसको मेंटेन करके चलना है 60-40 को, ये जरूर है। और इसके लिए किसी भी तरीके की अरेंज करना वो करेंगे। जी यही मेरा क्वेश्चन था सर। जी यही मेरा क्वेश्चन सर। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. We have a follow-up question from Bala Murali Krishna from Oman Investment Advisors. Please go ahead. Yes, thanks for the opportunity again. So somewhere I have read that the new plant will be capacity of 6 lakhs each per year. Is it right for this figure? 6 lakhs,
Yeah, it is including of AC chargers and DC chargers both. Because AC chargers requirement is huge and its volumes are very big. You are correct. And how? Okay. And how will be the percentage will break up, sir? I think DC chargers are most, because of power rating, these are costlier than AC chargers. So how will be that percentage in the production capacity? How much percent will be AC and how much percent will be DC? 80% के आसपास होगा सर आपका AC charger, because AC charger will sell with each and every car. We are working with many automobile companies, and most probably very soon we will get approved as a vendor for this AC charger, which will come with the car and with the wall box charger. So quantity will be huge very soon. And there is another one charger, that is a Ola charger, which is a onboard charger, that also will get included in the charger. Okay. That means we will be a OEM manufacturer for all these big automobile companies soon. Then quantity will be very good. Okay. And how much revenue and we are targeting this year? How much? How much revenue we are targeting this year? I cannot comment on this right now. Okay. Okay, sir. That's all. Thank you. Thank you. Next question comes from Sumit Srivastava, an individual investor. Please go ahead. गुड मॉर्निंग रमन सर. सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ. सर ये अपनी कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स में ईवी, सोलर, बैटरी और एलईडी में मतलब कितना ब्रेकअप है? सर एलईडी जो पार्ट है वो भी सोलर में गिना जाता है, अलग से नहीं है, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए एलईडी लाइट नहीं बनाते. हम सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, सोलर एलईडी होम लाइटिंग सिस्टम बनाते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं. तो वी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ सोलर. तो मेजरली वी हैव ओनली टू पार्ट, वन इज सोलर, वन इज एलईडी, वन इज ईवी. और जब हम बैटरी की बात करते हैं तो हम एनर्जी स्टोरेज के पार्ट बना रहे हैं, वो भी सोलर के साथ बना रहे हैं. तो इट इज ऑल्सो काउंटेड इन अ पार्ट ऑफ सोलर. अच्छा सर, सेपरेट बैटरीज नहीं बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, वो बैटरी हम अलग से बेचते नहीं है. हम बैटरी सोलर के साथ बेचते हैं. एनर्जी स्टोरेज हो गया या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो गया, उस तरीके के सिस्टम से देखते हैं. और हम लिथियम बैटरी पे काम करते हैं. ओके ओके, ठीक है सर. बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे काम कर रहे हैं? जी 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 जी, राइट. ओके सर, मेन कस्टमर्स आज की डेट में कौन कौन से होंगे आपके? सर हमने जो मेजरली अगर बात करें तो आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम दिया है. इसके अलावा कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज भी हैं, टाटा है, और भी कुछ कंपनी हैं जिनके नाम हम लगातार न्यूज में भी पब्लिश करते रहते हैं. रिक्रूटेड क्लाइंट सारे ही हैं जिनके साथ हम नाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके जिनके साथ अप्रूव हो चुके हैं, जिनके ऑर्डर आ चुके हैं, वो हम पब्लिकली ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर चुके हैं और न्यूज में भी आ चुका है. और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पाइपलाइन है, अंडर अप्रूवल है, उनके नाम अभी मैं डिस्क्लोज आपसे कर नहीं सकता. ओके सर, गॉट इट. सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ आप एसी चार्जर के वेंडर सून बन जाएंगे आफ्टर सम अप्रूवल. सर वो किस टाइप के अप्रूवल्स हैं? नहीं, मैं समझा नहीं, मैंने क्या कहा था. मतलब आपने कहा था कि वी विल स्टार्ट टू रोल एसी, वी विल सून बिकम एसी चार्जर वेंडर्स आफ्टर अप्रूवल. जो भी गाड़ियां आप खरीदते हैं, हर गाड़ी के साथ आपको एक चार्जर मिलता है, कार के साथ, इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ. तो जितनी भी कंपनी की गाड़ियां आज आ रही हैं, हम सबके साथ पाइपलाइन में फाइनल स्टेज से हैं. तो उनकी गाड़ियों में भी सर्वोटेक के चार्जर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं. अच्छा, ये हर मैन्युफैक्चरर का अलग अपना अप्रूवल प्रोसेस है? जी बिल्कुल बिल्कुल. तो हिंदी का प्रोसेस जो है वो मारुति बनेगी, मारुति का प्रोसेस जो है वो टाटा नहीं बनेगी, सबका अपना प्रोसेस है.
अच्छा अच्छा, सबका अलग है। तो सर ये प्रोसेस में तो काफी टाइम लगता होगा। सर 1 साल लग जाता है लगभग। तो हमने जो भी शुरू किया हुआ है इन सबके अंदर हमें 1-1 1.5 साल हुए हैं, किसी में 8 महीने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलरेडी आपने इतना टाइम स्पेंड कर दिया। यस यस यस। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है सर। सर आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है सर? हमारी क्या बैटरी फैक्ट्री तो विजिट कर सकते हैं कभी फैक्ट्री? हरियाणा, सोनीपत हरियाणा। तो विजिट कर सकते हैं क्या कभी? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं सर। हमारा जो नया प्लान चालू होने जा रहा है जब स्टार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक प्लान करेंगे कि जिस तरीके का आपने बता दिया हम नोट करते हैं कि कैसे हम ये कर पाएं ताकि जो उसको विजिट करना चाहता है उसको हम करवा पाएं। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आप लोगों के लिए कुछ करें। तो आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली हम प्लान करते हैं। आपने एक अच्छा बात दिया मुझे सोचने के लिए। ओके सर, वेरी बेस्ट ऑफ। और अगर फिर भी इसे लगा तो हम एक और काम कर सकते हैं जो मुझे लगता है अभी आपसे बात करते रहते लगता है, वो ये है कि हम इसका एक लेटेस्ट वीडियो भी बना कर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो दैट इज बहुत आसान। यस यस सर, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. We have a follow-up question from Aditya Bagaria from Sri Shankar Timber. Please go ahead. Hi sir, you already answered my question. Like the last person asked the same question I was going to ask, sir. So I have nothing more to ask. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, if you have any question, please press star and 1 on your telephone keypad. Next question comes from Naman Parmar from Nivesha Investment. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. I joined the late very, so I just wanted to know what is the capacity currently for the solar AC/DC chargers. सर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की करंट जो कैपेसिटी है वो लगभग 12,000 यूनिट पर ईयर की है और एसी चार्जर की जो कैपेसिटी है वो लगभग 30,000 यूनिट पर ईयर की है। और करंटली अपन कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं? हमारा टारगेट है सर कि हम करंटली इस कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर लें इस साल में और साइमल्टेनियसली दूसरी फैक्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है बननी। तो फेजिंग है, सब साथ साथ होता जा रहा है। जो दूसरी फैक्ट्री बन रही है वो कंप्लीट जब तक होगी वो इसको जब तक सपोर्ट करेगी तब तक फैक्ट्री का जो थर्ड फेज है वो भी स्टार्ट हो जाएगा बनना। एक और फेज है वो भी स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो ये सब फेजिंग है जिसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया सो दैट साथ साथ काम होता चला जाए। क्योंकि कैपेसिटी आपको एक दिन में चाहिए नहीं, या तो मैं कैपेसिटी बिल्ड करने में बैठ जाऊँ तो कहूँ 3 साल बाद में बनाना शुरू करूंगा। तो हमने क्या किया, इसको फेजिंग में डाल दिया। राइट, तो साथ साथ बनता जा रहा, साथ साथ हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, साथ साथ हम ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज द वे। तो हम लगभग 2027 तक अपनी कैपेसिटी हर साल बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओके। और जो अभी अपन नया जो प्लान डाल रहे हैं उस पर मतलब वो क्या चीज के लिए डाल रहे हैं मतलब, और वो मतलब कब रैंप अप? चार्जर के लिए डालना है। अच्छा। और अपना कोई मतलब कॉम्पिटिटर जो होगा परफेक्ट जो आपको कॉम्पीट कर रहा होगा ये पर्टिकुलर ईवी चार्जर के अंदर, सोलर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो कोई नाम बता सकते हो? जी तो मुझे तो कोई कॉम्पिटिटर लगता नहीं है, इसलिए मैं किसी का क्या नाम लूँ। और फिर भी जो मानते हैं कि वो हमारे कॉम्पिटिटर है उसके बारे में गूगल अपना बढ़िया जानता होगा। और ये जो अप्रूवल लेने का जो पार्ट होता है वो जनरली मतलब ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है? मतलब स्टार्टिंग से अगर अपने कोई पर्टिकुलर कस्टमर आया है, जैसे आप बोल रहे हो IOCL, टाटा और इन सबको आप सप्लाई कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप जैसे अप्रूवल लेते हो फॉर पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोसेस मतलब कितने टाइम का होता है जनरली? सर ये अलग अलग है। ये प्रोसेस नॉर्मली 3 महीने से लेके 1.5 साल तक का है। अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ का अप्रूवल लेने जा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आप देने जा रहे हो, किस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी मैटर करती हैं क्योंकि कई कंपोनेंट्स को अप्रूव कराने में जो एवरेज कॉस्ट है वो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की है। अच्छा। तो इट डिपेंड। और उसके अलावा आपके पास वो
सेटअप होना चाहिए जिस सेटअप से आप उस तरीके के प्रोडक्ट या कंपोनेंट को टेस्ट भी कर पाए। आज हमारे पास जितने भी ईवी चार्जर हैं उसको टेस्ट करने के लिए कोई मैनुअल टेस्टिंग नहीं है। वी कैन टेस्ट एनी चार्जर इन लेस देन 5 minutes by computerized system. You just insert just like a car and push the button. It will work. Everything is automatic and you will get the result on the screen. टक करके and you will get ये प्रोडक्ट ठीक है या गलत है। तो everything cost us, but automation पे हमने काफी काम किया। ओके, तो आपका मतलब विजन क्या है आगे? मतलब अब मैं ये कहता हूँ, अगर मान लीजिए आज टेस्ला की गाड़ी इंडिया में नहीं है और मुझे कुछ चार्जर एक्सपोर्ट करने हैं जिन्होंने टेस्ला गाड़ी चार्ज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए थे। टेस्ला गाड़ी तो आएगी इंडिया में और मैं अपना चार्जर या अपना सेटअप लेके बाहर जा नहीं सकता। तो आपके पास सिमुलेशन के क्या सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप करें तो वो सारी सेटअप और वो सारे इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल इन आवर फैक्ट्री इन आवर लैब, सो वी कैन टेस्ट एवरीथिंग इन हाउस थ्रू द सिमुलेशन। ओके, तो मतलब अभी आपका विजन क्या है? मतलब आगे कंपनी मतलब कौन सा वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा रिवेन्यू शेयर रहेगा और मार्जिन डिफरेंस क्या रहता है सोलार प्रोडक्ट, ईवी चार्जर और ये? सर इन्वेस्टर्स से थोड़ा सा डर के बोलना चाहता हूँ, टॉप की 3 कंपनियों में से एक कंपनी बनना है अगले 2 सालों में। ओके, बनाना है, ये कहूँगा आप लोगों की कंपनी को टॉप की 3 कंपनियों में से एक कंपनी बनाना है। इस बात की जिम्मेवारी देके मुझे यहाँ बिठाया गया है जिसके नाम की सैलरी ले रहा हूँ, तो वो करके दिखाऊंगा आपको। ओके, या थैंक यू वेरी मच सर। प्लांट विजिट के लिए जरूर आप मतलब बताइएगा। आपका मतलब करंट प्लांट सोनीपत में है ना? हाँ, अगले वाला भी सोनीपत में। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you. We have a follow-up question from Agastya Dev from CAO Capital. Please go ahead. थैंक यू वेरी मच सर अगेन। बट ये टेक्निकल क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि 2 तरीके के अगर हम ये पकड़े ईवी चार्जर, एक रहेगा जो जैसे पेट्रोल पंप के पास कहीं तो लगा रहेगा जो कि पब्लिक चार्जिंग रहेगा, और एक जैसे आप कह रहे थे कि OEM जो भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके साथ आपको पैक करके देगा। तो इन दोनों टाइप के चार्जर्स की लाइफ साइकिल कितनी रहती है सर? जो मेरा गाड़ी के साथ आएगा वो गाड़ी के पहले खराब होगा या गाड़ी पहले बेचने का टाइम आ जाएगा? और जो पब्लिक चार्जिंग है सर जी, उसमें सर जस्ट टू फिनिश द क्वेश्चन, जो पब्लिक चार्जिंग रहेगी उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कुछ आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी उसमें, जिसमें आप मेंटेन कर पाएं या आप ऑपरेट कर पाएं, वो एक अपॉर्चुनिटी है क्या सर? आपका सवाल पूरा हो गया? जी सर। आपके सवाल में 3 पार्ट है, मैं 3 पार्ट का जवाब देने जा रहा हूँ आपको। पहला आपका सवाल ये था कि जो चार्जर्स हैं उनकी लाइफ कितनी होगी, तो उसका जवाब आपको ये दे देता हूँ कि आज अगर आप याद करें तो आज से 10 साल पहले अगर पीछे जाएं तो हम जब कोई मोबाइल खरीदते थे या हम कोई कंप्यूटर लाते थे या हम कोई टीवी लाते थे, तो हम उसको खरीदते हुए उसका सर्विस सेंटर में बाकी चीजें पहले देखा करते थे, राइट? और जब वो खराब हो जाता तो हम उसकी ठीक कराते थे, अब हम सोच नहीं देखते। आज आप याद करें तो मैं ब्रॉडली ये देखता हूँ कि मोबाइल या टीवी खराब होने की वजह से नहीं बदले जाते, वो मॉडल ऑब्सोल्यूट हो जाता है। हमारा मन करता है कि हम एक नया मॉडल ले लें, इसलिए हम बदलते हैं जी। आज एलईडी टीवी खराब नहीं होते, मतलब मैं एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं कर रहा। यानी कि टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है कि आज टीवी बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, आज मोबाइल खराब नहीं होते हैं। मैं छोटी कंपनी है, मतलब मैं इंटीरियर ब्रांड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन की, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की, मैं बात कर रहा हूँ 2 बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, राइट? आप एग्री करते हैं मुझसे? जी बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से जो चार्जर आज बनाए जा रहे हैं वो ये सोच के बनाए जा रहे हैं कि अगले 10 साल तक भी इन चार्जर को बदलना ना पड़े। अच्छा। और जब 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल या 7 साल के अंदर टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, आपको नई टेक्नोलॉजी और नई बहुत सारे फीचर के साथ बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी, तो आप कहेंगे ऐसे बदल देंगे। तो इस खास के साथ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब आता है तीसरा सवाल, जो आपने कहा था कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम आज जितने भी चार्जर बेच रहे हैं वो 3 साल की गारंटी है और 7 साल के उसके बाद AMC के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर उन कॉन्ट्रैक्ट की टोटलिंग कर लूँ
सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट की टोटलिंग कर लूँ पिछले 3 सालों में और जो अगले 1 साल में माल बेचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोटेक कंपनी को अपने ब्रेक इवन पर लाने के लिए एएमसी के रेवेन्यू से ही वो ब्रेक इवन पे आ जाएगी। दैट मीन्स रेवेन्यू, हाँ, मार्जिन विल बी ए नेट प्रॉफिट, कुड बी। जी तो ये बहुत बड़ी बात है, बचत से अच्छा प्रोडक्ट दे पाए तो, जिससे हम काम कर रहे हैं। जी 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 जी। और सर आप क्या ऑपरेट करेंगे सर चार्जिंग स्टेशन को, या वो डायरेक्टली अब बीपीसीएल ऑर्डर कर रही है आपसे, तो बीपीसीएल ही चलाएगी चार्जिंग स्टेशन? सर अगर आपको पता हो, अगर तो मैं फिर भी नहीं भी है तो मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारी एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है सर्वोटेक ईवी इंफ्रा। वो इंफ्रा ऑलरेडी अपने चार्जर पॉइंट बनाने से उसने शुरू कर दिए हैं, और बहुत जल्दी आपसे हम लोग शेयर करेंगे कि कितने चार्जिंग पॉइंट लगा दिए गए हैं और क्या क्या काम उसमें हो चुका है। दैट यू विल गेट नोटिस्ड सून। सर उसमें मुझे क्लैरिटी है, मैंने आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए दोनों देखा था, उसमें तो मुझे मालूम है कि जो सब्सिडरी में चार्जर जो उसके थ्रू आएंगे वो आप ही ऑपरेट करेंगे, वो तो आप ही के हैं, ओनर मॉडल है वो। बट इसमें सर, इसमें जब एक बार आप बीपीसीएल को आपने बेचे और बीपीसीएल ने इंस्टॉल कर दिया अपने पेट्रोल पंप पे, तो एक तो ओएमसी वाला एलिमेंट आपने बताया, बट उसके अलावा आपका कुछ रहेगा सर कि आप ऑपरेट कर रहे हैं और जो चार्जिंग हमने उनको, अच्छा वो फिर बीपीसीएल मॉडल हमने बेचा और पैसे दिए। जी अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम डन फॉर द डे सर। मेरे सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे दिए सर। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Next question comes from Vijay Bakrada, an individual investor. Please go ahead. भाटिया जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे विजन के साथ सर्वोटेक को आगे ले जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अभी मार्जिन का जो डिप है वो दो तरह से एक्सप्लेन किया आपने। एक तो आपने बताया कि आपने स्ट्रेटेजिक मूव के अंतर्गत अपने मार्जिन को शायद कम किया है, और दूसरा एडिशनल जो एक्सपेंशन के जो आपके प्लान्स हैं उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया है। क्या फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में कोई ऐसी आप गाइडेंस दे सकते हैं कि लगभग मार्जिन जो है वो किस रेंज में रहने वाले हैं? क्योंकि ग्रोथ तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है टॉप लाइन में, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो लैंडस्केप है उसके अंतर्गत कुछ मार्जिन की गाइडेंस दे पाएंगे आने वाले 2-3 साल के लिए? कि मैं बहुत बढ़िया फाइनेंस का आदमी तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ कि एक इन्वेस्टर जैसे दिखता है, मैं वैसे ही देखने की कोशिश करता हूँ कि इन्वेस्टर दिखता है कि उसको अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है। जब मैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक इन्वेस्टर हूँ ना, मैं 2 रोल निभा रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि 3 रोल निभा रहा हूँ। एक मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जिसका काम है यहाँ काम करना, दूसरा मैं विजनर भी हूँ जिसका काम है एक विजन के साथ इस कंपनी को आगे लेके जाना, तीसरा मैं शेयर होल्डर भी हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मैं इस कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी हूँ। तो मेरा भी स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, फैमिली पैसे तो मेरे ही बढ़ने चाहिए, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, और क्यों ना सोचूं, सभी लोग सोचते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर जब मैं दिखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मार्केट में मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ऑपरेट करूँ, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब मैं बात करूँ कि ईपीएस, तो अर्निंग पर शेयर बढ़िया मिल पाए मेरे इन्वेस्टर को। तीसरी बात, मेरे इन्वेस्टर को रेगुलर डिविडेंड मिल पाए, उसको शेयर में बोनस मिल पाए। अगर ये सब चीजें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर कंपनी दे पा रही है और उस लेवल को मेंटेन कर पा रहे हैं किसी भी मार्जिन और प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो आई थिंक वी आर गुड एनफ। दैट इज माई थॉट प्रोसेस, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिशें करके हम किसी ना किसी चीज से अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि हम अभी एक्सपेंशन मोड में हैं। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ी कंपनी है। सर हम पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप वाली कंपनी बने हैं, इससे मीडियम कैप में जाना है, फिर लार्ज कैप में जाना है। अगर उस दिशा में जाना है तो बहुत सारे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे काम करने से जब हम आएंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, बहुत सारे चीजें हैं जिन पे काम करना है। तो हम इस तरह की तलवार की धार पे हैं जिसमें थोड़े से भी गलत डिसीजन नुकसान और फायदे करा सकते हैं। तो हम बड़े प्रिसाइज होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मार्जिन, तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो आपको मल्टीपल होते दिखेंगे, मल्टीफोल्ड, जिससे हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जरूर होगा।
जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वो मल्टीफोल्ड होंगे, करेक्ट। बट अगर आप टर्म्स में परसेंटेज में देखेंगे तो वो बहुत बेहतर मैं इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि जो प्लान है वो मैं ही देख पा रहा हूँ कि अगले 5 साल में जहाँ पहुंचना है उसके लिए काम करने बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर महीने कोई ना कोई नया काम कर बैठते हैं, कभी हम एक नई फैक्ट्री प्लांट की जगह ले लेते हैं, फिर हम उसको बनाना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसके अंदर कुछ नई मशीन भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब आप देखें तो लास्ट 2 सालों के अंदर अगर मैं पैट की बातें करूं तो हमने लगभग 22 करोड़ कमाया, जबकि हमने करीब करीब 60 या 70 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्री में। तो आप ये देखें कि इन सब के जो प्रोसेस हैं उन सबको भी मैनेज करना है। इस सब को लेके मैं इन्वेस्टर को हम एक बढ़िया रिजल्ट दे पाएं, एक बढ़िया प्रॉफिट दे पाएं, डिविडेंड दे पाएं और उनको ये फील करा पाएं कि कंपनी एक ठीक दिशा में जा रही है, राइट। तो ये बड़ी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म में आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। पी रेशो में, ईपीएस रेशो में आपको चीजें बहुत इंप्रूव होती दिखेंगी, जो अभी भी हो रही हैं, और बेहतर लगेंगी और बहुत बहुत बेहतर दिखेंगी। ये मैं ऐसा फील करता हूँ तो उससे काम भी कर रहा हूँ, राइट। बट इन टर्म ऑफ परसेंटेज मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, शायद इस पर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे और टॉप लाइन पे नहीं आएगा, ये मैं जरूर आपको इंश्योर करूंगा। जी जी जी, आपकी बहुत प्रोफेशनल अप्रोच के लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत सिंसियरली आप जो है वो एड्रेस करते हैं क्वेश्चंस को और इश्यूज को, तो गुड लक। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you. The last question for the day comes from Ishan, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Thank you so much for giving this opportunity and for answering all the questions so clearly. I had one question. What was the thinking behind acquiring a team in the Bengal Premier League? If it was purely for marketing reasons, why didn't we buy ads, things like that? I just want to understand what is the thinking behind that. सर मैं ना एक बात का I can answer you in Hindi, is it okay ना for you? Yeah, sure. I can understand. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने इस सवाल का मैंने कुछ सवाल के जवाब में कुछ चीज़ें बताई थी। मैं दोबारा से यहाँ सभी शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ जो काम करते हैं वो हम एक ग्रिड मैट्रिक्स में ऑपरेट करते हैं, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो टॉप टू बॉटम काम नहीं करता, वो ग्रिड मैट्रिक्स में काम करता है। ग्रिड मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारी कंपनी में जितने भी टॉप शॉट लोग हैं या पुराने लोग हैं वो सर्विस इंडस्ट्री की तरह या ट्रबल शूटर की तरह काम करते हैं। दैट मीन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हेल्प करेंगे, आइदर वो आइडिया स्टेज में काम करेंगे और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे कि और क्या कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो टॉप टू बॉटम है वो वर्टिकल हेड होते हैं, जो काम करते हैं कि हम वर्टिकली क्या क्या चीजें कर सकते हैं और वो अपने उस वर्टिकल के हेड होंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है और वो उसमें कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज माय थॉट प्रोसेस। हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। जब ऐसे ऑपरेट करते हैं और 2-3 वर्टिकल के हेड मिलकर ये कहते हैं कि हमें कुछ चीजों से बेनिफिट आ सकता है या हमें कुछ ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज पे इतना पैसा स्पेंड करना है, तो इट वॉज प्लान कि अगर ये क्रिकेट टीम, क्योंकि क्रिकेट आज हिंदुस्तान का पैशन है, इसको अगर साथ जोड़ लिया जाए तो इससे एक मार्केटिंग स्पेंड जो हमने ब्रांड के लिए करना था एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए, वो उतने ही स्पेंड में हमें एक फ्रेंचाइज मिलती है जो आने वाले टाइम में कंपनी को एक वैल्यूएशन भी दे सकती है और एक ठीक दिशा में ले जा सकती है। तो उससे काम करना चाहिए। तो इसमें एक एस्पेक्ट था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा एस्पेक्ट था जो वर्टिकल के हेड से जो कहते थे कि इससे हम मार्केटिंग के बेनिफिट ले लेंगे और अपने आप को ईस्टर्न इंडिया में एस्टेब्लिश कर लेंगे। वो भी इसको उसका बेनिफिट वो भी लेने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना एक पूरा प्लान बनाया है। दे आर डूइंग ऑन दैट। तो इट वाज अ कंक्लूसिव डिसीजन बाय द टीम। दैट्स व्हाई वी टुक दिस डिसीजन एंड वी आर expecting it will be a good in the future. Got it, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now I hand over the floor to management for closing comments. Yeah. We sincerely thank everyone for joining us today. We trust that we have provided a comprehensive overview of our company and business model and addressed all your questions. We are witnessing significant growth across our diverse product range,
fueled by our continuous research and development efforts and strategic initiatives. We remain committed to introducing innovative products, expanding into new markets, and delivering value to all our stakeholders. For any further questions or inquiries, please don't hesitate to contact our investor relation team, Kunal Shah or Naman Maheshwari from Captive IR. They will be happy to assist you. Thank you again for your time and participation. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, members of the management. Ladies and gentlemen, on behalf of Vinstra Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines now.